کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ ویلکم بیک، آپ کو بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پرنس آف پیس، اور آج پرنس آف پیس میں ہمارا موضوع زندہ پتھر اور مقدس قوم۔ پاسٹر شہباز اور پاسٹر سندھیر دونوں نے بریک پر جانے سے پہلے بہت خوبصورت اس کی وضاحت کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ خداوند آپ کی مدد کر رہا ہوگا اس بات کو سمجھنے میں کہ آج کا جو موضوع ہے خدا اس کے وسیلہ سے، اس ٹاپک کے وسیلہ سے آپ کو کیا سکھانا چاہتا ہے۔ تو میں پھر درخواست کروں گا پیارے بھائی شہباز یونس صاحب سے کہ وہ ہمارے ناظرین کی مزید اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ جی بھائی صاحب۔ جی شکریہ پادی صاحب۔ یہ 5ویں آیت کے پہلے حصے کو جب ہم پڑھتے ہیں جی تو لکھا ہے تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو۔ روحانی گھر جو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایمانداروں کو پیش کیا جا رہا ہے، اور ایک اور بات دیکھی جائے تو یہ کلیسیا جو ایماندار ہیں وہ روحانی گھر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور کلیسیا اور عہد عتیق کی جو ہیکل ہے یہ دونوں مشترک ہے، اور یہ زمین پر جو ہے یہ خدا کی سکونت گاہ ہے، واہ، جس میں خدا بستا ہے، رہتا ہے، واہ، چلتا واہ، پھرتا واہ، ہے، واہ، یہ سکونت گاہ ہے۔ کیا بات۔ اور یہ ایسی سکونت گاہ ہے جو زندہ پتھروں سے تیار کی گئی ہے، مردہ پتھر نہیں ہے۔ اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایماندار نہ صرف یہ زندہ پتھر ہے بلکہ یہ مقدس قوم بھی ہے۔ واہ واہ واہ۔ مقدس، اور یہی ہمارا ٹاپک ہے، زندہ پتھر اور مقدس قوم۔ جی صحیح۔ یہی مقدس لوگ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو یسوع مسیح کے پاک لہو سے مقدس کیے گئے ہیں۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مقدس قوم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو ایک اور شرف ملا ہے، اور وہ ملا ہے یہ خدا کے کہن بھی ہے۔ اور کہن جب ہم دیکھتے ہیں تو موسوی جو شریعت ہے اس میں صرف ہارون کے خاندان سے اور لاوی کے قبیلے سے لیے جاتے تھے، ان کے علاوہ کوئی اور کو حق نہیں تھا، یہ خدا کی طرف سے ملا تھا۔ لیکن آج کے ایمانداروں کو میں جو ہے ایک گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کے وسیلے وہ ہر ایماندار جس نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے نجات پائی ہے، اور وہ خدا کا کہن ہے، اس کو خدا کی خدمت کے لیے چنا گیا ہے۔ اور یہ نہیں ہے خدمت کے بس پرپٹ پہ کلام سنانا، کلام کہتا ہے کہ نعمتیں اور خدمتیں طرح طرح کی ہیں۔ کچھ کلام سنانے کے لیے، کچھ چرچ میں خدمت کرنے کے لیے بالکل بالکل۔ کہن مقرر ہوئے ہیں۔ جب ہم مکاشفہ کی کتاب پہلے باب میں پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہمیں مقدس بھی کیا ہے اور اپنے کہن بھی بنایا ہے، تو اس لیے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامہ کا ایماندار جو ہے اس کو بہت خداوند یسوع مسیح کے وسیلے مقدس بھی کیا، واہ واہ، پاک بھی کیا، بالکل۔ زندہ خدا کے پتھروں کا گھر بھی ہے، مقدس قوم بھی ہے، اور خاص امت بھی ہے۔ تو یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے، کیا بات۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ہم کہن ہیں، ہم مقدس ہیں، تو پھر ہم پر کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں جن کو نبھانا بہت ضروری ہے۔ کئی دفعہ پادی صاحب ہمارے معاشرے میں ہے کہ ہم نام کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، ہم ٹائٹل عہدوں کو بہت پسند کرتے ہیں، ذمہ داری کو نہیں لینا چاہتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ اگر خدا نے ہمیں خادم جانتے ہوئے ہمیں خدمت دی ہے تو کلام میں لکھا ہے کرنتھیوں کے خط میں کہ خادم میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ وہ دیانتدار نکلے۔ بالکل۔ اس عہدے کو جو اس کو ملا ہے، خداوند نے جو اس کو شرف حق ملا ہے خدا کی طرف سے، اس کے مطابق خدمت بھی کرے۔ تو آگے ہم پڑھتے لکھا ہے کہ مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی جاتی ہے۔
यानी कुर्बानियाँ, ऐसी कुर्बानियाँ जो जिंदा हैं वो भी चढ़ानी है। और वो कुर्बानियाँ क्या है? वो हमारी खिदमत गुजारी का काम है, वाह, वफादारी है, वफादारी है, सच्ची तालीम है। और मसीह यसू के साथ वफादारी और खुदा के कलाम की मुनादी और अच्छा करैक्टर, बहुत बहुत जरूरी, ये बहुत ज़रूरी बहुत है। अहम है। बहुत दफ़ा ऐसा हमारे कल्चर में कहा जाता है कि मसीही लोग जो हैं ये झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल, ये सच्चाई बयान करते हैं। तो हम मुकद्दस लोग हैं, तो फिर हमें ऐसा होना और ऐसा दिखाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल बड़े अफसोस की बात है कि लोग अब कहना शुरू हो गए, नहीं अब आपके लोग भी ऐसा कर लेते हैं। तो ये अपने मुकाम को छोड़ना ये बहुत ख़तरनाक बात है। और अगर पाक हैं तो फिर क्या करना है कि हमें इसके साथ जो हमें हक है वो मिला है, शर्म मिला है, हमारी खुदा तक रसाई भी है। बहुत अच्छा। और रसाई है तो फिर हमने कैसा करना है कि पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करनी है। वो जो कलाम कहता है, जो कलाम का म्यार है, उसके मुताबिक चलना है। और फिर हमने रूहानी कुर्बानियाँ चढ़ानी है। ये कुर्बानियाँ जैसे आप पहले बता रहे थे कि ये फर्माबरदारी है हमारी, ये हमारी खुदा के साथ मोहब्बत है, उसके साथ हमारा तवल्लुक भी है। और इसके साथ ये भी पादी साहब बहुत ज़रूरी है कि दुनिया के साथ उसके हम शक्ल ना बने। उसके साथ हम कई दफ़ा क्या है कंप्रोमाइज़ करते हैं। हम कई दफ़ा दुनिया भी रखते हैं और खुदा भी रखते हैं। लेकिन मुकद्दस कौम है, शाही कानों का फ़िरका है, तो फिर ये बातें हमारी ज़िंदगियों में नहीं होनी चाहिए। बल्कि लोग हमें पढ़ें, लोग हमारे करैक्टर को देखकर कहें कि वाकई बहुत अच्छा, ये मसीह के लोग हैं, बिल्कुल ये पाक किए हुए हमें लोग चलती हैं। फिरती इंजील बनना चाहिए कि जहां भी हम जाएं लोग फील करें कि हम गॉस्पल हैं, फिफ्थ गॉस्पल जी, पांचवी इंजील हम बन जाएं। जी। जैसे पादी साहब हम देखते हैं कि इब्तदाई कलीसिया में जी, शागिर्द जो हैं जिधर जाते लोग देखकर कहते कि ये यीशु मसीह के शागिर्द हैं और यीशु मसीह के साथ रहे हैं। वाह, यही अभी हमारे लिए नमूना दूसरों को पेश करना बहुत ज़रूरी है। यही बातें लोगों को जीतने का सबब बनेंगी। आमीन। और इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि इसके साथ साथ हमारे अंदर दूसरों की फ़िक्र होना बहुत ज़रूरी है। दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में कि अगर कोई भूखा है तो उसकी फ़िक्र होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम एक उज़्व है, हम एक बदन का हिस्सा है, बिल्कुल ठीक है, अज़ा हैं। तो हमें अगर हमारे किसी जिस्म के अज़ा को तकलीफ होती है तो सारा पूरा बदन मुतासर होता है। तो हमें इसी तरह कलीसिया मसीह का बदन है। बहुत शुक्रिया भाई साहब, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। शहबाज यूनुस साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि हमें दूसरों की फ़िक्र करनी है और हम यीशु मसीह में मिलकर, हम बेशक मुख्तलिफ उज़्व हैं और मिलकर हम यीशु मसीह की कलीसिया उसका बदन बनते हैं और मसीह इस कलीसिया का सहारा है। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। पास्टर साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। अभी हम पास्टर संदीर से भी मज़ीद जानेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले वो बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, तो मैं चाहता हूँ कि जो गुफ्तगू वो फरमा रहे थे उसी बात को आगे बढ़ाएं। जी ब्रदर। जी, बहुत शुक्रिया भाई साहब। पहले हमने बात की जिंदा पत्थर की, कोने के सिरे का पत्थर, यानी हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह। हाँ जी। अभी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा मुक़द्दस कौम पर। तो भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की है इस पर, थोड़ा सा उसी को और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे 5वीं आयत बयान करती है, तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो। मुक़द्दस पतरस यहाँ पर मसीही लोगों से मुखातब है। यहाँ पर अगर लफ्ज़ मुक़द्दस देखा जाए तो ये वो लफ्ज़ है जो मखसूसियत के लिए इस्तेमाल होता है, अलग करना किसी चीज़ को, ऑर्डेन करना, मखसूसियत। और जिसमें हम अगर अहद अतीक के अंदर जाएं तो वहाँ पर ऑर्डेन लोग
लावी काहिनों का जो है था फिरका, बिल्कुल वो हमें नजर आता है। राइट। और यहाँ पे ये अल्फाज तुम भी ये बयान करते हैं कि अब सिर्फ लावी वहां पर नहीं वाह रहे, वाह वाह, बहुत अच्छे। सिर्फ लावियों का वहां पे अमल दखल नहीं रहा, बल्कि उनके साथ साथ, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो निकल गए, हाँ हाँ, उनके साथ 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 वाह, अब दूसरे लोग भी शामिल हो गए। क्या बात। तुम भी, जितनों के साथ वो मुखातिब है वो सब के सब अब उस फिरके में शामिल हो सकते हैं। और अगर इसी तरह से इस हवाले को थोड़ा सा आगे जाके पढ़ें, नवी आयत बयान करती है, लेकिन तुम एक बरगुजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मिल्कियत है। वाह, बहुत खास मिल्कियत, और इसमें टाइटल दिए गए। क्या हम टाइटल पसंद करते हैं, आपने बात की, बहुत अच्छे। हम टाइटल पसंद करते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी, खुदा भी हमें टाइटल देता है, बिल्कुल। और ये एजाज है हमारा, एजाज, इस्तेहकाक है हमारा, बिल्कुल। इस्तेहकाक है। जी। और खुदा ने बड़ी खूबसूरत बात हमारे लिए की है कि हम सिर्फ किसी एक चुनाव में नहीं है, हम बरगुजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, और फिर मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत जो खुदा की खास मिल्कियत, जो खुदा का हिस्सा बखरा, वाह वाह, खुदा की मिल्कियत है, खुदा उसे अपना हिस्सा कहता है। क्या बात। तो ये बहुत हमारे लिए ख़ास बात थी। जैसे हम देखें कि वहाँ पर काहिन पहले अपने आप को मुकद्दस करते, पूरा साल काहिन अपने आप को मुकद्दस करता, अपने लिए कुर्बानियाँ पेश करता। यहाँ पे कुर्बानी का जिक्र आया, लिखा है, काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियाँ चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीले से खुदा के नज़दीक मकबूल होती हैं। वहाँ पर कुर्बानी पुराने अहद के मुताबिक दी जाती, अब यहाँ जो कुर्बानियाँ कबूल होंगी वो यीशु मसीह के वसीले से कबूल होंगी। और वहाँ पर सिर्फ लावी काहिन कुर्बानी पेश करता, अब यहाँ पर कोई भी अपने होंठों के नजराने पेश कर सकता है, अपनी कुर्बानी पेश कर सकता है, और खुदा के हजूर में किसी भी वक्त जा सकता है। और यीशु मसीह के वसीले से इसकी मकबूलियत बिल्कुल उसी तरह से है जैसी लावी काहिन की मकबूलियत थी। जैसी मकबूलियत वहां पर थी, वैसी ही अब आम शख्स जो कोई भी खुदा की हजूरी में जाता है, इसकी मकबूलियत बिल्कुल उसके इक्वल ठहरती है। और इसके पीछे रीजन यीशु मसीह का पाक लहू है, जो हर एक कुर्बानी से अफजल और कामिल कुर्बानी है। ये बात दरअसल मैं कहना चाहता था कि ये वो कामिल कुर्बानी है, यीशु मसीह का खून, जिसके वसीले से हम मुकद्दस कौम ठहरते हैं। क्या बात है। और ये मुकद्दस कौम यीशु मसीह ने हमें ठहराया। ये कोई हमारा इसमें किरदार नहीं है, हमारी कोई हमारा रोल नहीं, कोई हमारी बढ़ाई नहीं। मैं पास्टर संधीर अक्सर एक बात कहता हूँ, अक्सर बैनर्स पर लिखा होता है मसीह बरादरी को मुबारक फलां, तो मैं गौर करता हूँ कि हम बरादरी नहीं है जी, हम तो उसकी खास मिल्कियत है, हम चर्च है, कलीसिया है, और ये मसीह की दुल्हन है जिसको वो लेने आ रहा है। ना कोई हम एसोसिएशन है, ना कोई सोसाइटी है, और ना कोई बरादरी है, बल्कि हम तो उसकी खास मिल्कियत है। ये हमारा एजाज है, हमारा इस्तेहकाक है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए कि यूहन्ना रसूल बयान करता है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद, ये भी टाइटल है। वाह, बहुत बड़ा टाइटल है। तो अगर हम टाइटल पसंद करते हैं तो उस टाइटल में आ सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, जो शहबाज साहब ने बात की। बिल्कुल। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं कि ये बहुत बड़ा एजाज है कि खुदा जो दुनिया और कौमों का खुदा है, हम उसे बाप कहते हैं, और बतौर मसीह हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो मतलब ये कि इसमें ना सिर्फ मसीही कौम जी, बल्कि तमाम लोग, जी, जो बात मैंने शुरू में की, तुम भी, जो कोई भी इस बात को सुन रहा है, वाह, तुम भी, हर एक इसमें शमूलियत इख्तियार कर इस मसीह पर ईमान लाए, उसे शख्स निजात कोई भी करे, अहले रंग, अहले जुबान, अहले नस्ल, कोई भी किसी कौम, किसी कबीले, किसी फिरके से ताल्लुक रखने वाला, अगर वो यीशु मसीह के पास आता है तो उसकी कुर्बानी भी वैसे ही कबूल होती जैसे लावी के घराने की कुर्बानी। थैंक यू सो मच पास्टर संधीर और पास्टर शहबाज, आप दोनों दोस्तों ने, भाइयों ने, खादमीन ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, हमारे नाजरीन की रहनुमाई फरमाई। पहले आपने सिखाया जिंदा पत्थर और फिर मुकद्दस कौम के बारे में, और वो सारी चीज़ें जो हमने सीखी हैं, मैं उम्मीद करता हूँ अज़ीज़ों
آپ نے برکت حاصل کی ہوگی اور آپ کی روحانی ترقی بھی ہوئی ہوگی، کیونکہ جیسے جیسے ہم اس کے کلام کو پڑھتے سنتے سیکھتے ہیں ہم روحانی طور پر گروتھ کرتے ہیں، بڑھتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں۔ تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ آپ نے ساری آج کی جتنی گفتگو سنی، خدا کے کلام میں سے باتیں سیکھی ہیں، وہ دوسروں تک ضرور لے کر جائیں، شیئر کریں۔ ہمارے یہ سارے پروگرامز آپ یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں، تو میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے یہ پروگرامز آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکیں۔ اپنی آرا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، دعا کے لیے بھی کال کر سکتے ہیں، میں اور میری ٹیم ہم بڑے بوجھ کے ساتھ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ کیپ واچنگ PMI۔ Prince of Peace, Prince of Peace.